We had seen, pay attention, we saw the formula for range, coefficient of range, quartile deviation, coefficient of quartile deviation, then yesterday we saw and coefficient of, yes or no? And I hope everybody remembers the formula. Mean deviation का formula for the raw data, mean deviation, raise your hand. Mean deviation, Mukti. Can I say sigma modulus xi minus x bar upon n? Discrete और continuous का क्या था? Discrete और continuous, गगन? Sigma fi modulus xi minus x bar upon n. Fi in the modulus sigma xi minus x bar upon n. What's the formula for coefficient of mean deviation? Coefficient. Nave. MD upon x bar. It is MD upon x bar. Nawaz. It is MD upon x bar. Yes or no? Yes or no? Harier, range का formula. Q3 minus Q1. Range. It is XH minus. It was XH minus. Pakka. QD. Raise your hand. QD. Mansi. Q3 minus Q1 upon 2. बेटा आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फॉर्मूला पेज पर जाओ, गिव द हेडिंग स्टैंडर्ड डिविएशन. नाउ कैन आई से मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने अलग अलग जो मेजर्स लिए, अलग अलग मेजर्स का मतलब क्या? वी टुक एक्स बार, वी टुक क्वार्टाइल्स. कहना से उसमें से हम देख रहे हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन कितने डिस्पर्स्ड हैं. लेकिन अब द चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन व्हाट इट सेज कि वी हैव केप्ट इन माइंड ऑल द इंपॉर्टेंट मेजर्स एंड फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट ऑल द मेजर्स हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन कितने डिस्पर्स्ड हैं. मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या? कीपिंग इन माइंड ऑल द मेजर्स वी हैव सेट सम स्टैंडर्ड. मतलब एक्स बार को ध्यान में रख के, मीडियन को ध्यान में रख के, मोड को ध्यान में रख के हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. और वो स्टैंडर्ड से हमारे ऑब्जर्वेशंस कितने डिस्पर्स्ड हैं, कितने दूर हैं, वो जब हम ढूंढेंगे तो दैट इज माय स्टैंडर्ड डिविएशन. दैट्स माय स्टैंडर्ड डिविएशन. अब उसमें लिखो रॉ डेटा. पहले हेडिंग मानी ना स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसमें पहले लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, बिकॉज इसमें शॉर्टकट मेथड भी है. तो वी आर राइटिंग राइट नाउ द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड. वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर. सो रॉ डेटा स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय S. फॉर्मूला इज सिग्मा xi square upon n minus sigma xi upon n the whole square under root. But what's the formula? Sigma xi square upon n minus sigma fi xi square upon sigma xi upon n the whole square. Then for discrete and continuous data, for discrete and continuous data, standard deviation is sigma fi xi square upon n minus sigma fi xi upon n the whole square. अब देखो शायद टेक्स्ट बुक में है ना, सिग्मा xi upon n is nothing but it's x bar. तो टेक्स्ट बुक में शायद इसके बदले वो लोग x बार लिख रहे हैं. बात एक ही है, मैं xi upon n whole square लिखूं कि x बार का स्क्वायर लिखूं, it's one and the fi xi upon n, that is also the formula of x bar. So I write this or I write x bar, it's one and the same. Sure? પછી લખો coefficient of standard deviation.
उसका फॉर्मूला है S अपॉन x बार। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका फॉर्मूला है S अपॉन x बार। Any doubt? But let's start the sum on this direct method, and if today times permits, then we can also go for the shortcut. Let's see if the time permits. Go on to beta page 149, exercise 4.4. beta page 149, exercise 4.4 गए? beta the first sum. The marks obtained by 9 students in the test of 100 marks of mathematics are given below. 9 students के देखो marks दिए हैं mathematics में out of 100. What we are supposed to find? Only the standard deviation of the marks which is obtained by the students. So first of all make the column इस तरह से xi 64 63 72 65, 65 68, हाँ 69, 66, 67, 69. okay. Any other doubts? Any other doubts? Now see the formula. Can I say this is a raw data? Yes. So raw data का formula क्या है? Sigma xi square upon n minus sigma xi upon n the. तो पहले मेरे को बेटा इसका टोटल्स दो, सारे अलग अलग आंसर देना, हाँ मजा आता है। 603 बेटा ये जो 603 आया उसके नीचे ऐसा एरो करके लिखो, ये है मेरा सिग्मा xi, द टोटल ऑफ xi दैट इज 603, एरो करके ऐसा हमको लिखना है, इट इज सिग्मा xi। अब फॉर्मूला में देखो मेरे को xi का स्क्वायर भी चाहिए और उसका टोटल, तो ये मेरा xi है, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम xi स्क्वायर। बेटा 64 का स्क्वायर 4096, 63 का स्क्वायर 3969, 5184, 4225, 65 का स्क्वायर इज 4225, 68 का 4624। बेटा कैलकुलेटर सब जनता यूज कर रही है कि बाजू वाला जिंदाबाद? 4489 47। बेटा इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दिया, हाँ टोटल किया जाए 4046, उसके नीचे एरो करके लिखो ये है मेरा सिग्मा xi का स्क्वायर, दिस इज बेटा सिग्मा xi का स्क्वायर। नाउ कैन आई से फॉर्मूला में जो चीजें चाहिए वो आ गई मेरे पास, सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, सिग्मा xi भी आ गया, n क्या है मेरा बेटा? n 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स यूज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n द होल स्क्वायर। So beta can I write 40465 divided by 9 minus 603 divided by 9 the whole square. Beta 40465 divided by 9 minus 603 divided by 9 the whole square. Beta, what is 40465 divided by 9? 449.
4496.11 minus 67. बेटा 63 डिवाइड बाय 9 603 डिवाइड बाय 9 67 का स्क्वायर बेटा 4496.1 minus 4489 अंडर रूट 7.11 बेटा छतरी हटाना आता है इट्स 2.67 but I'm talking about the root. Do you know how to do the root? बहुत बढ़िया बेटा सम इजी लग रहा है क्या बोल रहे हो सेकंड वाला करके दो फटाफट बहुत इजी है सेकंड वाला उसमें नंबर भी छोटे हैं तो फटाफट हो जाएगा सेम टाइप रॉ डेटा है कम ऑन द सेकंड Beta, come on, start the second one, come on. Again, we are supposed to find out the standard deviation, the number of car for the service in 5 service stations. Come on, do it. But I'm waiting. Please don't be in a rush to give the answers. नहीं तो जनता पहले आंसर लिख लेगी फिर ये बाकी के स्टेप करेगी और फिर जब पूछेंगे आंसर है बोला हाँ सर हमारा तो कब का आ गया है खाली स्टेप लिखने बाकी थे बेटा 2.65 कितना आसान आंसर आ रहा है 2.65 बेटा धीरे धीरे सम करने वाली जनता बेटा हाथ नीचे चोक के मैं करूं बोर्ड पे दूसरे सम की बात कर रहा हूं ये वाले सम की नहीं दूसरे सम की बात कर रहा हूं नेक्स्ट वाला सम या डिस्क्रीट वाला चालू करिए बेटा ये सबका आ गया 2.65 2.65 अमर 2.65 हिमानी देखो बदल के दोस्ती देखो सिर्फ प्रज्वल आती है तो मैं खुद ना जानूं बेटा नेक्स्ट सम कॉपी करेंगे चलो बेटा the third sum let's start the following frequency distribution represents the amount of deposits and the number of depositors in a bank find out the coefficient of standard deviation बेटा coefficient of standard deviation ढूंढना है that is S upon बेटा कॉपी करेंगे सम कम ऑन deposits
that is given in thousands. xi and a number of depositors, that is fi, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. 2, 7, 11. The total is 50. अब बेटा यहां ध्यान, तुम अब ये वाले सम में कहां तुम गलती करने वाले हो, जरा यहां ध्यान से। स्टैंडर्ड डिविएशन का जरा डिस्क्रीट का फॉर्मूला देखो क्या है, fi स्क्वायर अपॉन n माइनस fi अपॉन n द होल स्क्वायर। सो यहां पर हम कॉलम बनाएंगे fi का and the next column will be fi नहीं, होल स्क्वायर नहीं है, fi xi का स्क्वायर है। मतलब वो है क्या मैं बताता हूं, तुम्हारी गलती भी मैं बोलूंगा, तुम क्या करने वाले हो जरा यहां ध्यान। लेकिन पहले मेरे को ये बताओ fi xi कैसे मिलेगा, fi into xi करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। So 5 into 2. Start along with me. 5 into 2. Then 70. 165. 250. Give me the total. 950. अब देखो तुम गलती क्या करोगे, या ना तुमने बेटा वो गलती करना शुरू कर दिया, मेरी वेट करो। अब इधर समझो, हम ये fi xi स्क्वायर में करेंगे कि एकदम घातक काम 100 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर ऐसा करने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। इट इज fi अने xi नो, मतलब ये जो xi का कॉलम है उसको fi xi के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है, ना कि इसे स्क्वायर कर देना। मैंने इधर बेटा ऐसा ब्रैकेट बनाया है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो बात सही है। इट इज fi xi स्क्वायर मींस इट इज fi xi इनटू वापस xi। क्या है फॉर्मूला, fi xi इनटू वापस, मतलब आने पाछू xi साथे मल्टीप्लाई करवानो, खबर पड़ी। सो 10 5 70 into 10, 165 into 15, 2475, 300 into 20, 250 into 25, 120 into this। आप पापा ने लिख दिया 35 into 35 करो, 1225। अब बेटा सारे अलग अलग आंसर देना। बेटा गलती क्या कर रहे थे पता चल रहा है fi xi में 20,300। अब बेटा इधर ध्यान देना, बेटा 50 के नीचे लिखो ये अपना n है, 950 के नीचे लिखो ये है मेरा सिग्मा fi xi, और 20,300 के नीचे लिखो दिस इज सिग्मा fi xi का स्क्वायर। ऐसा लिखना जरूरी है ताकि जब हम फॉर्मूला में डालें तब इजीली अपने को सब पता चल जाए। But I again wait for you. Is there any doubt in the calculation part? No's? Never's? Applies. fi xi square upon n minus sigma fi xi upon n the whole square। बड़ा fi xi square कितना आया 20,300, n कितना है 50, 950 अपन 50, 406। बेटा 950 डिवाइड बाय 50 19। बेटा 19 का स्क्वायर
So 406 minus 3, 361. 30, 45, 6.71. बेटा ये स्टैंडर्ड डिविएशन आला, बट हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ना ढूंढना है, स्टैंडर्ड ना ढूंढना है, क्या ढूंढना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उसके लिए एक्स बार ढूंढेंगे। फॉर्मूला इज सिग्मा fi xi अपॉन n, 950 अपॉन 50, दैट इज 19। बेटा कुछ तो बोल दो। अरे हवे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन x बार 6.71 अपॉन 19, 0.35। बेटा 0.35। बेटा 0.35। The sum is over. What's the doubt? What's the doubt? अभी तक समझो। कंटिन्यूअस का जो हमें सम स्टार्ट करना है ना, उसमें ऐसा सेम कैलकुलेशन आने वाला है, सेम, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी कैसा है, सेम। तो हम सम लिख के कैलकुलेशन में तुम पर छोड़ सकता हूं, फिर तुम मुझे टोटल दोगे, मैं फिर फॉर्मूला लगा के आंसर ले आऊंगा। नेक्स्ट वाला सम कॉपी करेंगे। The information about the 50 firms in the last year is given below. The information of the profits of the 50 firms. Find out the standard deviation of the profits of the firm. Find out the standard deviation बेटा। कॉपीज करो पहले। जो मुझे प्रॉफिट्स दिए हैं, दैट इज माय क्लास। प्रॉफिट्स इट्स माय क्लास। नंबर ऑफ फर्म्स जो दिए हैं, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। 0 to 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 7 6 15 12 and 10. What's the total? बेटा 50 is my n. बेटा फॉर्मूला में हम आगे कुछ कर सके, हाँ, पहले अपने को xi चाहिए, दैट इज माय मिड वैल्यू। बेटा मिड वैल्यू कैसे मिलती थी? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो इसकी बाउंड्री पॉइंट से 5, 15, 25, 35 अने बेटा नेक्स्ट कॉलम fi xi का बनेगा, नेक्स्ट कॉलम fi xi। मेरे को नहीं चाहिए, खुद से करो, चलो। क्या से मैंने डिस्क्रीट वाला सम डेलिबरेटली रब नहीं करा है, क्या से fi xi यानी उसका स्क्वायर फिर हम कर पाएंगे? बेटा जल्दी मुझे गलत गलत सारे आंसर लाके दो। But what's the doubt in calculating fi into xi?
The जनता बेटा FI का जरा बताओ 7 into 5 is 35 90 या आराम से बेटा शांति से चिल्लाओ मत कहना से बेटा this is total of sigma FI now बेटा raise your hand how do I get FI square बेटा 35 का स्क्वायर कर दूं 35 का स्क्वायर कर दें सो क्या करेंगे FI into बेटा it will be FI into XI तो 35 into 5 9 147 202 45850 बेटा that is sigma FI का स्क्वायर 45850 that's my FI का स्क्वायर बेटा टेल मी ऑनेस्टली कितनों की कैलकुलेशन सही पड़े बेटा गेट मी द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन कम ऑन योर ओन sigma FI square upon n so 45850 upon n कितना है 50 1370 upon 50 917 minus 917 minus 27.4 का स्क्वायर 166.24 12.89 और 90 चले 12.89 या 12.90 जो भी आंसर आ रहा है चले बेटा कितनों का हो गया आंसर भी आ रहा है बेटा जिनका नहीं आ रहा है मैं नहीं देख रहा हूं तुम्हें कॉपी मार लो मैं तुम्हें देख ही नहीं रहा हूं कशिश मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं सम नंबर 5 चालू करेंगे द लास्ट सम फॉर टुडे गेट मी द आंसर नो हेल्प सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टाइप्स बेटा होमवर्क पहले मार्क करो इलस्ट्रेशन 12 13 15 या 15 बची 17 डू इट बाय दिस डायरेक्ट मेथड ओनली ओके क्या क्या 12 13 15 અને 17 फिफ्थ वाला जरा फटाफट खत्म करेंगे आई एम 100% श्योर आई एम नॉट गोना डू इट ऑन बोर्ड everybody get me the answer come on